لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ بیٹھ کے پڑھ لیں. چلو جیسے السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ مرزا یاسین بیگ صاحب. میں فرینڈ فورم کینیڈا کے تمام اہلکاروں خصوصاً مرزا یاسین بیگ صاحب کا تہ دل سے ممنون ہوں کہ انہوں نے نہ صرف مجھے کینیڈا ٹی وی 1 پر مدعو کیا بلکہ کینیڈا کے ادبا و شعراء کو سننے اور سامعین سے ملنے کے لیے اس تقریب کا اہتمام کیا. مرزا صاحب نے ساؤتھ امریکہ میں صاف جھانک کی غرض سے اردو طنز و مزاح کی ایک کھڑکی کھولی ہوئی ہے. اس کے ذریعے سے وہ زندہ ادیبوں اور شاعروں کو بلا لحاظ قوم و مذہب متعارف کروا رہے ہیں، ورنہ ہمارے ہاں عام طور سے اہل قلم کی تفہیم کا کام ان کی تدفین کے بعد شروع ہوتا ہے. اس اعتبار سے وہ بلا شبہ کینیڈا میں اردو ادب کے ایدی کہلائے جانے کے مستحق ہیں. کینیڈا میں یہ امر خوش آئند ہے کہ یہاں پر کتاب کی اہمیت بہت زیادہ ہے، بہت ہے، اس لیے بہت زیادہ ہے، اس لیے نظر کے ساتھ کتاب کی بھی حفاظت کرنی پڑتی ہے. ورنہ ہمارے ہاں تو حال یہ ہے کہ ایک 5 اسٹار ہوٹل میں تقریب رونمائی کے دوران صاحب کتاب کی جانب سے کتاب کا ایک نسخہ تمام حاضرین کی خدمت میں پیش کیا گیا. جیسے ہی تقریب ختم ہوئی اور کھانے کا اعلان ہوا تو سب لوگ کتاب اٹھائے بغیر ڈائننگ ہال کی طرف لپکے اور کھا پی کر وہیں سے باہر نکل گئے. یہ جو ہم کے انداز میں بیان کر رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں بولنے کے لیے پورا 1 گھنٹہ دیا گیا ہے اور کسی مرد کے لیے بغیر وقفے کے 1 گھنٹہ بولنا آسان بات نہیں. مصنف کا خود نوش سوانح خاکہ. پہلے یہ تھوڑا سا اپنا بتا دوں. نام کوئی نہیں جانتا سوائے اہلیہ کے، کیونکہ وہ اکثر کہتی ہیں کہ میں اب آپ کو اچھی طرح جان گئی ہوں. جائے پیدائش گھر میں پیدا ہوئی، تاریخ پیدائش یاد نہیں کیونکہ اس وقت ہم بہت چھوٹے تھے. عمر اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کتنی ہوگی. تعلیم زبان اپنی زبان پر قائم رہتے ہیں. تعلیم بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلانے کا خیال ہے. اخلاقی و باطنی تربیت ہم نے صبر و قناعت کا درس اپنی والدہ سے، رشتہ داریاں نبھانا اپنے والد سے اور طنز کرنا اپنی اہلیہ سے سیکھا ہے. ذریعہ معاش مجموعی طور پر دھجیال کا عمومی پیشہ وکالت، مقدمات پر نظر رکھنا اور بینکاری مال پر نظر رکھنا رہا ہے، جبکہ ننیال کا عمومی پیشہ تدریس علم دین، آخرت پر نظر رکھنا اور سسرال کا آبائی پیشہ حکمت، صحت پر نظر رکھنا، صحافت، حالات پر نظر رکھنا اور اینک سازی نظر پر نظر رکھنا رہا. معاشی حالات مقروض رہنے کے باوجود پچھلے کئی سال سے شمار اہل ثروت میں ہی ہوتا ہے، کیونکہ اہلیہ کا نام ثروت ہے. ازدواجی تعلقات عام لوگوں اور رشتہ داروں سے تعلقات انتہائی خوشگوار ہیں، مگر عمارت کی طرح اس کا چہرہ بھی اہلیہ ہی کے سر ہے، کیونکہ وہ کبھی کسی سے نہیں لڑتی سوائے ہمارے. خوراک
خوش خوراک ہیں، ہر قسم کی خوراک خوش ہو کر کھا لیتے ہیں، خواہ وہ دوا ہی کی خوراک کیوں نہ ہو۔ سماجی زندگی، گھر میں تو ہم پر کوئی ٹرسٹ نہیں کرتا، پھر بھی ایک دینی مدرسے کے ٹرسٹی رہ چکے ہیں۔ کبھی مقام، کبھی قد میں اضافہ یوں نہ ہو سکا کہ ہماری پہلی کتاب 43 برس کی عمر میں شائع ہوئی اور قد بڑھنا 18 سال کے بعد۔ موجودہ مصروفیات، نومولود بچوں کے کان میں اذان دینا، جہاں بلغ مریضوں کے سرہانے یاسین شریف پڑھنا، لوگوں کی دعاؤں کی درخواستیں سننا، ٹی وی سے بات بات پر الجھنا اور ہر گھنٹی پر چونک کر دروازے کی طرف لپکنا۔ یہ والدہ صاحبہ کا خاکہ ہے، اور اب ہماری امی، جن کی شخصیت میں آپ کو یقیناً اپنی امی کی صورت نظر آئے، کیونکہ ہماری عمر کے لوگوں کی مائیں کم و بیش ایسی ہی ہوا کرتی تھیں۔ سرکار کے کماؤ محکموں میں ایماندار لوگوں کے لیے چھوٹے شہر موضوع سمجھے جاتے ہیں۔ ہمارے والد صاحب بھی ایک ایسے ہی محکمے کے دیانتدار ملازم ہونے کی وجہ سے ساری زندگی ایمانداری کا خمیازہ بھگتتے رہے اور زیادہ تر چھوٹے شہروں میں تعینات کیے گئے، ورنہ ہم جیسے لوگ تو ایماندار اس لیے کہلاتے ہیں کہ خیانت کرنے کے مگر اس کی جگہ تبدیل کر دیتے تھے۔ جب کبھی وہ ایسا کرتے ہوئے پکڑے جاتے تو امی ان سے بچوں کی طرح لڑا کرتی اور بساط الٹ دیتی کہ ہم نہیں کھیل رہے، یہ بے ایمانی ہے۔ پھر ہم لوگ پاپا کا ہاتھ پکڑ لیتے اور ان کی مٹھی کھول کر اس میں سے مسروقہ گوشت برآمد کرتے۔ پھر چھٹی کے دن ہم سب بہن بھائی والدہ کا ہاتھ بٹاتے اور ان کے ساتھ کام میں لگے رہتے۔ یوں ہم بچپن ہی سے برتن دھونے کے ساتھ ساتھ چائے اور کھانا بھی بنا لیا کرتے تھے، ورنہ لوگ تو یہ سب کام شادی کے بعد کرنا شاید کسی نے یہ شعر ہم جیسے لوگوں کے لیے ہی کہا تھا، کسے بتائیں کہ غم کے صحرا کو خلد دانش بنایا کیسے، کہاں سے آب رواں کو موڑا، کہاں سے باد بہار لائے۔ ایک یہ لوگ تھے جو نامساعد حالات میں ہمارے لیے اتنا وقت نکال لیتے تھے، ایک ہم لوگ ہیں کہ ہر طرح کی سہولت میسر ہونے کے باوجود اپنے بچوں کو ذرا وقت نہیں دے پاتے۔ سرکاری دفاتر میں کام کرنے والے انتظامیہ کی اس حکمت عملی سے بخوبی واقف ہوں گے کہ جب اسے کسی جونیئر اسٹاف ممبر کو ترقی دینا مقصود ہو تو دفتر میں موجود سینئر اسٹاف ممبر کو دوسری جگہ ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے، یوں وہ بھی ترقی لیے بغیر آگے بڑھ جاتا ہے۔ ترقی کے موقعوں پر ہمارے پاپا کا بھی ہمیشہ تبادلہ ہی ہوا، اس لیے ان کی آمدنی بچوں کے خط کی طرح بڑھی۔ پھر بھی امی نے خسارے کا بجٹ کبھی نہیں بنایا۔ تنخواہ ملنے پر مہینے بھر کا سودا ایک بار آ جایا کرتا تھا، مبادہ بعد میں پیسے ختم ہو جائیں، اس طرح سے کہ اس میں سے کچھ نہ کچھ سامان بچ بھی رہتا تھا۔ یہ اضافی اشیاء کسی غیر متوقع صورتحال کے باعث اخراجات بڑھ جانے کی صورت میں کام آ جایا کرتی تھی، کیونکہ ہمارے ہاں متوسط طبقے کے لوگ ہنگامی اخراجات، جنہیں آج کل اچانک خرچے کہا جانے لگا ہے، اپنا پیٹ کاٹ کر پورے کیا کرتے ہیں۔ امی کی اس حکمت عملی کے باعث ایسے موقعوں پر نہ تو گھر کے بجٹ پر کوئی اضافی بوجھ پڑتا تھا، نہ ہی ہمیں بار بار بازار کے چکر لگانے پڑتے تھے۔ یاد نہیں کہ انہوں نے کبھی کسی ہمسائے کے گھر سے اچانک کچھ منگوایا ہو، جیسا کہ آج کل رواج ہے۔ وہ لوگ ہمیشہ ہمارے گھر سے ضرورت کی اشیاء
बाजार से बारियायत यानी मुफ्त ले जाया करते थे। रियाकारी और बनावट से मुबर्रा रही, जो हैं खुद को वही जाहिर किया। ना तो अल्लाह की बनाई हुई शक्ल को आइन समझकर उसमें कभी तरमीम की कोशिश की, ना फैशन के जुनून में बच्चियों को इस तरह के कपड़े पहनाए कि दामन के चाक और गिरेबां के चाक में कोई फासला ही न रहे। खाने के वक्त पर कोई मेहमान आ गया तो जो तैयार हुआ वही बर वक्त सामने रख दिया। कम हुआ अगर कभी तो 2-4 अंडों का ऑमलेट बना लिया, या फिर ज़ाहिरी रख रखाव की बजाय जल्दी से ताहिरी बना लिया। पुलाव और कौरमे के चक्कर में मेहमान को आजमाइश में नहीं डाला कि उसकी भूख मर जाए तो खाना लगना शुरू हो और दौड़ाने और असराने में कोई वक्फा ही ना रहे। सलीका मंद इतनी कि जिस चीज़ की जो जगह है वो इस्तेमाल के बाद वहीं रख दी जाएगी, ताकि ज़रूरत पड़ने पर किसी को दिक्कत ना हो। अंधेरे में आंखें बंद करके हाथ बढ़ाइए और मतलूबा चीज़ उसकी मुख्तस करदा जगह से उठा लीजिए। ये नहीं कि माचिस गुसल खाने से और कैंची बावर्ची खाने से बरामद हो, या ये कि नहाने खड़े हुए तो बाल्टी, डोंगा, साबुन, शैम्पू और तौलिया जमा करने के लिए सारे घर में नाचते फिर रहे हैं, जैसे कोई परिंदा तिनके जमा करके अपना घोंसला बना रहा हो। अम्मी ने हर तरह से हम लोगों का ख्याल रखा, लेकिन बेवजह किस्म के चौंचले करके सुस्त और नाजुक मिजाज नहीं बनने दिया। पुरअतमाद और सख्त जान बनाया। इतना कि लाहौर में छठी जमात के ज़माने में हम कहानियों की किताबें खरीदने के लिए तने तनहा साइकिल पर सवार होकर मॉडल टाउन से लोहारी गेट चले जाया करते थे, जो वहाँ से 10-12 किलोमीटर के फासले पर तो होगा। इसी तरह पढ़ाई लिखाई में हमारी मदद किया करती, ख़ास तौर से कलम बनाने में। उस ज़माने में हर बच्चे के बस्ते में एक अदद चाकू हुआ करता था, जिस पर जली हरूफ में ये इबादत बंदा होती थी, चाकू कलम ना बनाए तो कीमत वापिस। आज वो चाकू हुआ करते तो सारे बेरम अपना कलम तराशने की बजाय एक दूसरे का सर कलम कर रहे होते। हम लोगों का कुल जहन तेज धार चाकू के इस इस्तेमाल की तरफ कभी गया ही नहीं, बस कलम ही बनाते रहे, वरना एक आध दुश्मन का काम तो तमाम कर ही देते। हमने अम्मी को ना तो कभी बार बार शहर बदल होने पर मुतफक्किर पाया, ना कभी पैसों की कमी की शिकायत करते हुए सुना, ना कभी वालिद साहब की तरक्की ना होने पर अफसुर्दा देखा। उन्होंने ना तो लंबी लंबी उम्मीदें बांधी, ना वो कभी ना उम्मीद हुई, जो मिल गया उसी पर कनात की। देखा जाए तो वो उन औरतों में से हैं जो जदीद तालीम से आरास्ता नहीं, कदामत परस्तों की तरबियत याफ्ता है, बज़ाहिर अनपढ़ कहलाती हैं, फिर भी बहैसियत बीवी अकमल तो बहैसियत माँ मुकम्मल। एक हमारे और आपके बच्चों की माएँ हैं, सब कुछ होने के बावजूद अपनी और अपने अहले खाना की ज़िंदगी को तल्ख बनाए रखती हैं। इलाके के कौंसलर की नाअहली की शिकायत भी अपने शोहर से करती हैं। ये नहीं सोचती कि शहर में नज़ले का वायरस फैला हुआ है, इसलिए सड़कों की नाक बह रही है। आप लोगों को पसंद आ रहा है ये? इस तरह की सादा बयानी में मिजाज है बहुत कम। जब मैं 5 साल आज़ाद कश्मीर में रहा हूँ, बैंक में ऑडिट डिपार्टमेंट में था, तो उसका एक वाक़या है। किस किताब से आपके? ये सूद के ताक़ुब में। ये आप देखिए, सूद के ताक़ुब। 1.5 घंटा एक नामहरम के साथ। एक बार बरजा जंटाला से चौकी जा रहे थे। ये छोटा सा शहर है जो बरजा और समानी के दरमियान एक छोटी सी आबादी है। अभी चंद ही किलोमीटर आगे गए थे कि अचानक तेज आंधी आई और फिर कुछ देर बाद मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। ड्राइवर के लिए कच्ची सड़क पर बस चलाना मुश्किल हो गया। उसने थोड़ी दूर तक तो कोशिश की, मगर जब कामयाबी ना हुई तो बस रोक कर सवारियों से माजरत की
और कंडक्टर के साथ एक तरफ को निकल गया। तमाम मुसाफिर भी उतरकर ठिकानों की तलाश में इधर उधर को चल पड़े। गालिबन उनके दोस्त या रिश्तेदार कहीं आसपास रहते होंगे। आखिर में 2 मुसाफिर बचे, एक मर्दाना और एक जनाना, यानी एक हम और एक औरत। उसके पुरसाने हाल तो हम थे, मगर हमारा कोई ना था। खातून के चेहरे पर इस तरह की सुर्खी देखकर सफर में महरम को साथ रखने का मसला समझ में आ गया। हम उसे पहचान गए। कुछ देर पहले बरजा से बस पर सवार होते वक्त गलती से हमारा बैग उसकी टांग से टकरा गया था, जो उसने हमें पहाड़ी लहजे में अंधा कहा था। वो हमारे करीब आई और पूछने लगी कि तुम कहाँ जाओगे? चौकी जाना है, मगर मैं अंधा हूँ, रात बस में ही गुजारूंगा। हमारा जवाब सुनकर वो जब्त करने के बावजूद खिलखिलाकर हंस पड़ी। सर्दी का मौसम है, ठिठर कर रह जाओगे। वो हमें समझाते हुए बोली, मैं रावलपिंडी से नया आया हूँ, मुझे तो रास्ता भी मालूम नहीं है। रास्ता मुझे मालूम है, जल्दी करो, अगर पहाड़ों पर से पानी आ गया तो कस वहाँ पर बरसाती नाले कहते हैं, पार करना मुश्किल हो जाएगा। गरज चमक के साथ मुसलसल बारिश हो रही थी। हमने सामान उठाया और बस से उतरकर उसका इंतजार करने लगे। वो नीचे उतरी और दोनों तेज तेज कदम उठाते हुए आगे बढ़ गए। सत शुक्र के जाए वकूआ पर कोई सहाफ़ी मौजूद न था, वरना अगले ही रोज खबर लग जाती। शादीशुदा औरत अपने 24 साला आशना के साथ पड़ा। दोनों काफी अरसे से मौके की तलाश में थे। ऐसी बेबुनियाद खबरें दरअसल भारी रकमें बटोर कर कुछ लोगों के करतूतों पर पर्दा डालने की गरज से घड़ी जाती हैं, वरना हकीकत यह है कि हमारे यहाँ तो औरतें अपने शौहर के साथ भी हर जगह नहीं जाती। वो भला किसी गैर मर्द के साथ कैसे तलाश हो जाती है। बहरहाल इसके साथ सफर पर रवाना हुए तो पता चला हमारी खवातीन मर्दों के शाना बशाना चलने का दावा तो करती हैं, लेकिन अगर कभी चलना पड़ गया तो उनसे कोसों दूर रह जाएंगी। मगर कुर्बान जाएं पहाड़ी औरतों की रफ्तार और शहरी मर्दों की रफ्तार, जहाज और साइकिल का मुकाबला था। लिहाजा एक नौजवान ने औरत का पीछा शुरू कर दिया। वो ब्रीफ केस लिए चल रही थी और हम सूट केस उठाए दौड़ रहे थे। किस नाम से पुकारें, किस तरह उसे आहिस्ता चलने को कहें, कुछ समझ में ना आया। उसकी सूरत देख चुके थे, इसलिए बहन कहने को जी ना चाहा। हर तरफ खूब अंधेरा था। इसे देख कर आंखों के सामने पुलिस रात का मंजर घूम गया। जब मुनाफिकीन को हल्की हल्की रोशनी में मुसलमान नजर आएंगे और वो लपक कर उनके पीछे दौड़ पड़ेंगे। मुसलमान तेजी से आगे बढ़ जाएंगे तो अंधेरा हो जाएगा और मुनाफिकीन उन्हें आवाजें देते हुए जहन्नुम के गड्ढे में गिर जाएंगे। बहुत खूब। आप पर मुनाफिक होने का गुमान गुजरने लगा, क्योंकि जब बिजली चमकती तो वो नजर आ जाती और हम लपक कर उसके करीब हो जाते, और जब वो नजर ना आती तो आंखों में अंधेरे छा जाते। ये पहाड़ों में अकेले कहाँ भटकते फिरेंगे। कुछ दूर चलने के बाद नाला आया। उसमें आओ देखा ना ताओ पानी में कूद पड़ी। हम सोचते ही रह गए और वो दूसरी तरफ पहुंच गई। उसने पीछे मुड़कर हमारी तरफ देखा तो हम यूं ही अपना बैग ठीक करने लगे। फिर अल्लाह का नाम लेकर नीचे उतरे और लरसती हुई टांगों से नाला पार किया। अब जूतों में कीचड़ भर गई और मजीद चलना दुश्वार हो गया। कुछ देर बाद झालाबारी शुरू हो गई तो वो एक दरख्त के नीचे खड़ी हो गई। हम भी उसी दरख्त के नीचे उससे जरा हट कर खड़े हो गए। जोरदार बिजली चमकी तो हम दहल गए।
मगर वो टस से मस न हुई। फिर सरसराहट की आवाज़ आई और करीब ही सांपों की एक जोड़ी रेंगती हुई नजर आई। हमने खौफजदा होकर अपना सूटकेस सर पर रखा और दौड़कर सड़क पर आ गए, लेकिन वो बड़े इत्मीनान से थोड़ा सा सरक कर सड़क पर आई। सांप गुजर गए तो दोबारा अपनी जगह पर जा खड़ी हुई। हम भी शर्मिंदा से होकर वापस आ रहे। यही मंजर किसी फिल्म में होता तो हीरोइन चीख मार कर हीरो से निपट जाती और कहानी शुरू हो जाती, लेकिन वहाँ तो कुछ भी ना हुआ। ना उसने चीख मारी, ना हमारे करीब आई। कर रहे थे तो क्या बोला? बहुत अच्छी तकलीफ है, इसमें आपका बहुत कमाल है। वैसे बताइए जल्दी साहब ये गालिब के राज में है। अनवी साहब, तुम भी लड़कों की सी बातें करते हो, खत मेरा तुम्हारे किसी हमनाम के हाथ जा पड़ा। भाई, ऐसे फ्लैटों में क्यों रहते हो जहाँ पर दो अनवर एंट्री हो? कई रोज से खत लिखने की फिक्र में था पर मौका ना मिला। अच्छा, आप नाराज ना हो और पूरी बात मेरी सुन लो। क्या हुआ, पिछले दिनों आम खाकर बेरिहानी में दांतों की बजाय अपनी आंख में खिलाल कर गए। घर में कोई ना था। घबराकर बाहर को निकला, बुरी हालत देखी तो मुझे पार्टी में बिठा आवाजान अस्पताल पहुंचा। मैं इसको तिब्बी तजुर्बागाह कहा करता हूँ। 7 बजे शाम इमरजेंसी में लाया गया था और 1:45 बजे शब डॉक्टर मेरे मुआयने को आया। आँख से पानी बराबर बह रहा था। डॉक्टर ने मुआयने के बाद फ्लू का असर बतलाया और खून का टेस्ट लिख कर दे दिया। वो मैंने ना करवाया कि अपने खून पर शक करना अहमियत के खिलाफ है, और दवाई लेकर घर चला आया। बीबी ने सुना तो वो दवा उसने झपट ली, किस वास्ते कि उसको फ्लू था, और अगले रोज डॉक्टर से आंखों की दवा लेकर लौटी थी। ये वाकया जुमेरात 15 दिसंबर को पेश आया। आज बुध का दिन और 21 दिसंबर की है। आँख से पानी गिरना हनूज बंद ना हुआ। ना खत लिख सकता हूँ, ना बना सकता हूँ, फिर भी तुम्हारे दिल की खुशी के वास्ते कागज कलम लेकर बैठ गया। 2 हर्फ लिखता हूँ, 2 भेजता हूँ। आधा हो गया हूँ, जबकि वाली अवध आज कज़ाए इलाही से पूरे हुए। कल रात शाही अस्पताल के मतब बराए अफसरान आला से मुआयना अपना करवा के आए थे। तमाम टेस्ट उनके क्लियर थे। हक मग़फ़िरत करे, अजब बीमार मत था। मेरी जान, तुम भी कमाल करते हो। एक तरफ अशिया सर्फ की गिरानी का शिकवा किया है, दूसरी जानिब मैदे की गिरानी का गिला करते हो। इस बात को सही जानूं, एलर्जी का होना साबित करता है कि सेहत से कोई खालिश ग़िज़ा तुम्हारे इस्तेमाल में आ गई है। लेबॉरेटरी टेस्टों का क्लियर होना अलबत्ता मूजिब तशवीश है। मेरी बात मानो और होम्योपैथिक तरीका इलाज अपनाओ, 10 दिन में अच्छे हो जाओगे। पता नज़र इसके आप अपनी आँख खोल बैठा। अब सेहत मेरी तुम्हारी तहरीर के मानिंद हो गई है, समझ में नहीं आता। आमिल असर बतलाता है, हकीम ने जिगर से वर्म बतलाया है, डॉक्टर डिप्रेशन का शिकार है। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट के मुताबिक माँ बनने वाला हूँ। होम्योपैथ शुगर का खदशा जाहिर करता है। उसने कई अशिया की सख्ती से ममानत कर दी है, खास तौर पर ज़मीन के नीचे उगने वाली चीज़ों की। कहता है, ज़मीन के अंदर पैदा होने वाली चीज़ें खाओगे तो तुम भी ज़मीन के अंदर चले जाओगे। भाई, मैं जीते जी कौन सा ज़मीन के ऊपर हूँ, माशी तौर पर पाताल ही में हूँ। अलावा इसके अपना ECG निकलवाया था। रिपोर्ट के बमूजिब दिल की हरकत मुनज़्ज़म नहीं। साहब, जो हरकतें दिल के हाथ सरजद हों वो क्यों कर मुनज़्ज़म हो सकती हैं। हार्ट स्पेशलिस्ट ने 3 माह बाद की तारीख दी है। वो तेरा समझाया, भाई मैं तुम्हारी बच्ची की तारीख नहीं मांग रहा,
बात उसकी समझ में ना आई। सुना है तुम्हारे यहाँ कुछ असहाब मेरी शख्सियत और तख्लीकात पर काम करके डॉक्टर बन रहे हैं। मालूम हुआ है और मालूम करके बताओ इनका शुमार किस किस्म के डॉक्टरों में होता है और वो किन अमराज का इलाज कर सकते हैं। सोचा अब इन्हीं को दिखा लूं, ये लोग मेरी रग रग से वाकिफ होंगे। भाई ये आँख की तकलीफ के बायस पढ़ना लिखना मौकूफ हुआ था, खाना पीना तर्क ना किया था, जो तुमने आम सिंजड़ी भेजना बंद कर दिए। ज़्यादा क्या लिखूं, सब खैरियत है, बस आँखों की तकलीफ के बायस के सबब टीवी देखना मौकूफ हुआ। खाने के बाद शब को 1 घंटा BBC सुनता हूँ, फिर 2 घंटे DB की। गालिबे भेजा। बहुत शुक्रिया। ये था हमारा आज की महफिल हमारी आज की, और अलवी साहब का बहुत शुक्रिया, आप तमाम लोगों का शुक्रिया, जिन लोगों का जो यहाँ हाजिर है, मैं नाम नहीं ले सका, अटेंडेंस पे नाम नहीं आया, उनका भी शुक्रिया। और इंशाअल्लाह ये महफिलें हम बर्पा करते रहेंगे, और न सिर्फ इस तरह की बल्कि जहन में कुछ और भी प्रोग्राम हैं कि जो इस शहर में अभी नहीं हुए, उस तरह के प्रोग्राम भी हम कि आप लोगों का ताउन उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो एक 2 माही सिलसिला हम शुरू करना